यस। सो स्टार्टिंग विथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने पढ़ा था कि इज एप्लीकेबल टू थ्री काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज योर, कौन सा वाला है, तीन बोलो मेरे को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स। करेक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नाउ देयर वाज वन क्वेश्चन आई थिंक आस्क्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक. So I told you that the first thing that you have to remember here is कि negotiable instrument का अपना क्या characteristics है. The same characteristics with a little bit of modification depending on which kind of instrument we are talking about. The characteristics will be something which is similar. So here in negotiable instrument we have it should be in writing, signed होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा सके. करेक्ट. तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए. जिसको वो टाइटल मिलता है उसका टाइटल जो है वो फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स होना चाहिए. मतलब वो टाइटल उसी का होना चाहिए, जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है वो ही उसका ओनर होना चाहिए एंड उसके पास वो ओनरशिप होना चाहिए टू ट्रांसफर. करेक्ट. लास्ट टाइम जब भी सेल ऑफ गुड्स भी अपन पढ़ रहे थे तभी भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो ओनर है वही वो ट्रांसफर कर सकता है. तो यहाँ पे भी होल्डर का टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. कितनी भी बार हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. एंड इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और एन ऑर्डर टू पे. सो इफ इट इज अ promissory note we say it's a promise to pay. If it's a bill of exchange or check we say it is a order to pay. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो है हमारा ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी और मनी ओनली. सो इट हैज टू बी मनी ओनली. इट कैन, जस्ट वन सेकेंड. इट मस्ट बी एन ऑर्डर और अ प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली. तो यहाँ पे हम लोग मनी के अलावा वी कैन नॉट हैव एनी अदर थिंग दैट वी आर नेगोशिएटिंग. एंड दैट अमाउंट हैज टू बी सर्टेन. इट शुड बी समथिंग दैट we know exactly what is the amount that is payable. In the paper I had asked you one question on no, that was not for amount. Okay, I'll get back to that. So these are the things which are the characteristics of a negotiable instrument. Money होना चाहिए, promise or order to pay, freely transferable from one person to another, can be transferred any number of times, signed होना चाहिए, stamped होना चाहिए, writing में होना चाहिए, and holder का title जो है free from defects होना चाहिए. Then in promissory note when we come or when we go to check or when we go to bill of exchange, अपना जो characteristics है वो same रहता है, but only it changes. Like in case of promissory note it is a promise to pay, whereas in a bill of exchange it is an order to pay. तो यहाँ पे promise to pay में I told you this will come as a case study question and this was the question that I'd asked in the examination कि अपना I promise Mr. B to pay rupees so and so on so and so date. तो यहाँ पे promise मतलब I am promising to pay. First, I don't have to write anything like I acknowledge there is a debt due or something like that. I say that I am promising to pay. I have to mention the name of the person to whom I am paying. In the question, the name of the person was missing. So I just said that I promised to pay 1,000 rupees. So that is not a valid promissory note because kisko pay karna is something that I have not mentioned. So here I promise to pay. The amount has to be certain is what we know. So the amount, if the amount is not mentioned, or if I say that I promise to pay whatever I earn in the next year, then that is something which is vague. So amount has to be certain. If the amount is not certain, then again not a valid promissory note, correct? So यहाँ पे राइटिंग में होना चाहिए, साइन स्टैम्प्ड होना चाहिए, पे मनी ओनली, वट एवर योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो भी रिक्वायरमेंट्स था. Pay a money which is a certain sum, again something that is there for negotiable instrument. यहाँ पे है हमारा promise to pay. एंड सेकंड है कि ये जो promise होना चाहिए should be definite and unconditional. When I am promising to pay you a certain sum of money, there should not be any conditions attached. But in case of promissory note, we have seen that if there is any condition attached, which according to the experience, ordinary experience of mankind, is bound to happen. अगर ये होने ही वाला है, ऐसा कोई कंडीशन है which will happen, maybe not in the near future, maybe 50 years down the line, but if it is something that will happen, then in that case such a condition is
a acceptable condition. But if it is a condition which may or may not happen, then वैसा टाइप का जो कंडीशन है वो अपन नहीं डाल सकते. So यहाँ पे if I say that I promise to pay on death rupees to Mr. B rupees 5,000 on death of Mr. C, so that the death in case of a person is something that an ordinary experience of mankind is going to happen, correct? तो वो मरने ही वाला है, आज नहीं मरेगा, शायद 50 साल के बाद मरेगा, but he is going to die someday or the other. So that is something which is that is something which is bound to happen, and hence such a condition when put is something which is a valid condition. But if I say that I promise to pay Mr. B rupees 5,000 when he gets married to C, so here marriage to C is something which may happen, which may not happen. तो वैसा वाला condition जो है is something which is not a valid condition. So basically condition नहीं होना चाहिए. If I am having a condition, it should be such a condition which in the ordinary experience of mankind is bound to happen. Otherwise, I cannot have a condition. It has to be signed by the maker. It has to be pay money and money only, pay a certain sum. Same characteristics what you have for a what do you call negotiable instrument, and it must be properly stamped. इसके अलावा यहाँ पे अपने पास होता है maker and pay. Maker is the person who is writing that I promise to pay so and so sum to Mr. so and so on so and so date or after so and so period. So here he's the person who is making the promissory note. Hence we'll call he is the maker, and the person to whom he is promising to pay is the person who's called as the payee. Correct? Sorry. Then coming to your bill of exchange. Bill of exchange में अपने पास again the same characteristics अपना writing में होना चाहिए. It is definite and unconditional, signed होना चाहिए. Payment of money and money only. The sum has to be certain, and then it has to be stamped. इसके अलावा आई सेड द डिफरेंस इज कि यहाँ पे मैं ऑर्डर करती हूँ टू पे करने के लिए, वहां पे मैं प्रॉमिस करती हूँ जिसको मैं प्रॉमिसरी नोट बोलती हूँ. यहाँ पे आई एम ऑर्डरिंग हिम टू पे दैट पर्टिकुलर सम, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे अपने पास तीन पार्टीज है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई. तो दिस इज द एग्जाम्पल दैट वी डिड इन क्लास. तो आई सेड दैट मिस्टर सैम जो है ही सोल्ड गुड्स टू मिसेस रीत एंड he drew a bill of exchange on Mrs. Reed. तो Mr. Sam जो है he has to take money from Mrs. Reed, and hence he drew a bill of exchange on Mrs. Reed saying that you have to pay rupees say 50,000 to me. Now, Mr. Sam, the person who is the creditor, is also the person who is the drawer because he is drawing the बिल ऑफ एक्सचेंज. मिसेस रीड जो है जिसके ऊपर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है इज नो वन बट द ड्रॉ ई, बिकॉज शी इज द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द पेमेंट. शी इज बेसिकली द डेटर. नाउ इसके अलावा आई सेड दैट मिसेस रीड जो है व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन शी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट ओके you are saying 50,000 is payable, I accept that 50,000 is payable, correct? So she will also become the acceptor of bill of exchange. करेक्ट. देन आई सेड कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मिस्टर ड्रॉवर जो है, मिस्टर सैम जो है ड्रॉवर, ही इज सेइंग दैट आई एम नॉट वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू पे. यू आर एक्सेप्टिंग, you are the drawee, I understand, but what if you don't pay me after 3 months when the amount is due? So I want someone else who is giving me like a surety, giving me like a guarantee that in case you don't pay, then that person will come and pay me, correct? सो उसको मिसेस रीत के ऊपर भरोसा नहीं था, एंड हेंस मिस्टर सैम सेड आई वांट समवन एल्स टू गिव मी दैट गारंटी. सो इन दैट केस शी सेज दैट मिस्टर रीत विल कम एंड गिव यू द गारंटी. सो मिस्टर रीत जो है वो बन गया ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. सो इन केस Mrs. Reed does not pay, the drawee does not pay, only then the drawee in case of need will be called to pay. If Mrs. Reed pays 50,000 में से 30,000, then draw in case of need will pay the balance amount. तो यहाँ पे we have drawer,
the person who is drawing the bill of exchange, he is basically the creditor जिसको पैसा लेना है. We have drawee जिसके ऊपर bill of exchange draw किया है. She is the person who has to make the payment. And you have the acceptor, may or may not be the drawee, जो accept कर रहा है कि okay this is the amount that is payable. And then you have drawee in case of need. So draw in case of need जैसे अपन ने guarantee में surety पढ़ा था, draw in case of need is someone who is basically giving a guarantee saying that if the drawee does not pay, then the draw in case of need will be called forward to pay. And then the last is the payee. तो यहाँ पे once the bill is due, at that point of time Mrs. Reith will pay Mr. Sam. Then the drawer will also become the payee. But there's also possibility that Mr. Sam may endorse it to someone else. So Mr. Sam may say, sorry, Mr. Sam may say that, okay, you have to pay me 50,000 rupees, but I have to pay 50,000 rupees to Mrs. Pam. So what I will do is that I will endorse the bill of exchange to Mrs. Pam and you pay this amount directly to Mrs. Pam. So on the due date, Mrs. Reed pays the amount to Mrs. Pam. In that case, Mrs. Pam will become what? Mrs. Pam will become the pay. So drawer and pay may or may not be the same person. So we have drawer, drawee, and pay. I hope you have understood what is the difference between the three of them. Correct? तो यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉई, पे, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एंड वी ऑल्सो हैव द एक्सेप्टर जो अपन ने डिस्कस किया है. नाउ when it comes to check is what we discussed is the same as a bill of exchange. But in case of check, the only difference is that the drawee is always the banker. So the person who is making the payment is always going to be the banker. So the drawee is always the banker in case of a check. The other things remain the same as a bill of exchange. The other characteristics of a check will remain the same as a bill of exchange. Yes. So it must fulfill all the characteristics of a bill of exchange, must be drawn on a specified banker, and is something which is payable on demand. Promissory note में जो है वहां पे payable on demand नहीं होता है, करेक्ट? हर बार एक बार देखते हैं यहाँ पे. Correct. A promissory note cannot be made payable to the bearer. Sorry, this one point we missed out. कि वो payable to bearer नहीं हो सकता है. जैसे in check we can have payable to bearer. Correct. जहाँ पे you go and you take, whoever takes the check to the bank, अगर वो bearer check है तो whoever takes the check will get the payment. But यहाँ पे promissory note में it cannot be made payable to a bearer. खाली reserve bank जो है वो payable to bearer का promissory note issue कर सकता है. एक्सेप्टेंस अपने को हुआ है. एक्सेप्टेंस इज बेसिकली दैट व्हेन ड्रॉई को मैंने बोला कि दिस इज द अमाउंट दैट इज ड्यू, द ड्रॉई विल एक्सेप्ट दैट दिस इज द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू पे. सो द ड्रॉई बिकम्स द एक्सेप्टर. एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी होता है, विच आई डोंट थिंक यू हैव, so we will not study that. I'm just surprised as to I'm not able to find the name. If 1 second wait, because we don't have these things here. Sorry, I'm not able to find the, for some reason it's not there in the textbook that I have shared with Dolly.
So yes. Then coming to your classification of negotiable instrument. Classification of negotiable instrument में अलग अलग type के negotiable instruments होते हैं. Again, one of them is going to be asked. Inland foreign अगर पूछेगा तो उसके ऊपर case study questions will come. And if they are asking you about your incomplete inchoate instruments, तो उसका जो theory question like we had in our papers, correct? सो बेरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेरर इंस्ट्रूमेंट में जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है कैन गो एंड टेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट दैट इज ड्यू ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, दैट्स कॉल्ड एज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. एंड इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऑर्डर पे जिसका नाम लिखा है, ऑर्डर जिसने दिया है उसने, उसके बाद जो नाम लिखा है वो ही जाके बैंक के पास से पैसा ले सकता है. नो वन एल्स कैन टेक दैट मनी other than the person who's mentioned there. So here it says that the last endorsement is blank and a bearer instrument can be negotiated by mere delivery. तो bearer instrument होगा जैसे अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि in a negotiable instrument अपने को क्या करना है, endorsement करना है प्लस डिलीवरी करना है. If both of them are not done, then you cannot endorse the instrument. But here in case of bearer instrument, you can negotiate it by mere delivery. We'll get back to that when we go to the second part of the chapter. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है कैन बी नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी एंड द लास्ट एंडोर्समेंट इज फिल्ड. सो एंडोर्समेंट बेसिकली क्या होता है, वेर इन बिहाइंड द इंस्ट्रूमेंट यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन टू whom you are endorsing. So when Mr. Sam is endorsing it to Mrs. Pam, what he'll do is keep behind the instrument, he will write down Mrs. Pam and he will sign Mr. Sam. So Mr. Sam का साइन है मतलब he is endorsing it एंड मिसेस पैम का नाम है मतलब उसने वहां पे लिखा है कि आई एम एंडोर्सिंग इट टू मिसेस पैम. देन मिसेस पैम जो है अगर वो मिस्टर एक्स को देती है, देन इन दैट केस मिस्टर एक्स लिखा रहेगा एंड मिसेस पैम का साइन है. तो वैसे अपना एंडोर्समेंट होता है. तो जहाँ पे एंडोर्समेंट में नाम लिखा है मतलब वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है. जहाँ पे नाम लिखा है वहां पे अगर मैं मिस्टर एक्स मुझे देता है एंड ही डजंट राइट द नेम, ही लीव्स द नेम ब्लैंक, ही जस्ट साइंस मिस्टर एक्स, देन इन दैट केस दैट बिकम्स अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा है तो जो होल्डर है वो जाके पैसा ले सकता है. जैसे अपना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था वैसा कि जिसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है वो जाके रेलवे के पास से डिलीवरी ले सकता है. दैट इज लाइक अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो जाके पैसा ले सकता है, करेक्ट. देन यू हैव योर इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. आई डोंट हैव द नोट्स फॉर दिस. इसके बाद ना लेक्चर के बाद मैंने और एक वीडियो किया है ओनली ऑन इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. आई शेयर दैट विद यू एंड उसमें मैंने हर एक एग्जाम्पल के साथ किया है द सेम थिंग दैट वी डिड इन क्लास. बट अगेन इफ यू वांट टू रिविजिट दैट थिंग विद द एग्जाम्पल्स आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू, यू कैन सी दैट. तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में देखो वो क्या बोलता है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्रॉन और मेड इन इंडिया. ड्रॉन इन इंडिया कौन कर रहा है? इन आर एग्जाम्पल वी हैव मिस्टर सैम हु इज ड्रॉइंग इन इंडिया. So it is drawn or made in India and it is made payable in or drawn upon a person resident in India. So मिसेस रीत जो है वो भी इंडिया में हो सकती है या फिर मिसेस पैम जिसको मैं पे कर रही हूँ she is also in India. So अगर any of these are there, either it is drawn in India and otherwise drawee and pay दोनों में से कोई भी एक अगर इंडिया में है तो वो मेरा बन जाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. लेकिन अगर वो ड्रॉ इन इंडिया नहीं हुआ है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है, तो अगर आई मेक इट इन सिंगापुर अपॉन अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, से मिसेस पैम. सो आई एम स्टेइंग इन सिंगापुर, आई एम ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन मिसेस रीत अपनी जो ड्रॉई है, देन इट इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया. अगर वो ड्रॉन या मेड आउटसाइड इंडिया है, भले ड्रॉ ही इंडिया में लेकिन मैंने उसको ड्रॉ आउटसाइड इंडिया किया है, तो फिर वो क्या बन जाएगा? इंस्ट्रूमेंट विच इज आउटसाइड इंडिया. सो इफ इट इज ड्रॉन इन, इफ इट इज नॉट ड्रॉन इन इंडिया, नॉट है सॉरी, इफ इट इज नॉट ड्रॉन इन इंडिया और इट्स नॉट मेड इन इंडिया, तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. या फिर वो नॉट मेड पेबल इन इंडिया. मेरी जो मिसेस पैम है जो इंडिया में थी, अगर वो इंडिया में नहीं होके यूएस में है, देन इन दैट केस इट इज मेड पेबल आउटसाइड ऑफ इंडिया. एंड इफ इट इज मेड पेबल आउटसाइड ऑफ इंडिया देन अगेन इट विल बिकम अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. सो अपने को क्या देखना है कि कहाँ पे ड्रॉ हुआ है
एंड अगर सब कुछ इंडिया में है तो इंग्लैंड अपने को मालूम है कहाँ पे ड्रॉ हुआ है, एंड इट इज मेड इन इंडिया, और इट इज मेड पेबल इन इंडिया, और इट इज अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, देन इन दैट केस अगेन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ड्रॉ आउटसाइड हुआ है या इट इज मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, तो वो बन जाएगा मेरा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, I will again share that video with all the examples, with different scenarios are given in that particular video. You can go through that once. Then coming to inchoate and ambiguous instruments. Inchoate and ambiguous instruments very likely to be asked as a case study question. Case study no, theory question. So here inchoate instrument. Inchoate मतलब incomplete in English. तो incomplete मतलब जो instrument में मेरा कुछ ना कुछ missing है. It is not fully complete. Something has not been mentioned there. Then it will become an inchoate instrument. It says when one person delivers to another a paper stamped in accordance with the law, either wholly or blank, having written thereon an incomplete negotiable instrument, then in that case it will become a inchoate instrument. Ambiguous instrument. Ambiguous मतलब जहाँ पे कुछ confusion है, तो when uh, I draw an instrument either which can either be construed as a promissory note or as a bill of exchange, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये promissory note है या bill of exchange है। या मैंने तुमको बोला था that I draw an instrument on a fictitious person, so Mr. Sam is drawing an instrument on Harry Potter, so वो पेबल तो मिस्टर सैम को ही करना पड़ेगा क्योंकि हैरी पॉटर नाम का तो कोई इंसान है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करती हूँ, देन अगेन इट विल बिकम अ एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट। तो एम्बिग्युअस मतलब जहाँ पे कंफ्यूजन है, व्हाई वुड यू डू सच अ थिंग, करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड एज अ एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट। देन इन दैट केस either it is drawn on a fictitious person where the amount is stated differently in figures and in words. So normally this is not something which is an ambiguous instrument. अगर मेरा फिगर्स में और वर्ड्स में, सो अगर तूने चेक भरा है एंड चेक में यू हैव रिटन 10,000 रुपीज, but the amount, and in words you have written 11,000 rupees, then in that case if you take that check to the bank, then in that case the bank will honor 11,000 rupees and not 10,000 rupees. So it says कि अगर figures and words में जो लिखा है उसमें घोटाला है, something is different in that, then जो words में लिखा है will be the amount which will be paid. So that is something which has been authorized by the Negotiable Instrument Act. Again, very small point, बट दिस इज समथिंग विच कैन बी आस्क्ड एज अ केस स्टडी क्वेश्चन अगर तुम्हारा पेपर इजी निकले तो। 3 दिन की छुट्टी के बाद मुझे लगता नहीं है, बट ठीक है। सो दैट इज फिगर्स एंड वर्ड्स। नाउ कमिंग टू नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगेन वेरी हाई चांसेस फॉर अ केस स्टडी क्वेश्चन। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय इटसेल्फ तुम लोग को ऐसे लगेगा शायद कि यू नो दिस इज अ वेरी व्हाट डू यू कॉल कंफ्यूजिंग और not able to understand a very technical time type of a chapter, but यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कॉन्सेप्ट है वो तू समझ जा। अगर तू कॉन्सेप्ट समझ गया, देन इन दैट केस यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, एंड चांसेस ऑफ अ केस स्टडी क्वेश्चन आर हायर एज कंपेयर टू योर थियोरी क्वेश्चन। बट केस स्टडी में अगेन देर इज वेरी लिमिटेड चांस दैट लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क यू। सो दे विल आस्क यू दैट सेम घिसा पीटा क्वेश्चन, उसमें कुछ भी, मतलब जब मैंने मेरा एग्जाम दिया था तभी भी यही टाइप के क्वेश्चंस आते, तो उसमें कुछ भी इनोवेशन वो लोग यूज ही नहीं करते, वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते। तो जो मैंने तुम लोग को एक नोट दिया था जिसमें जो सीए इंटर में जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जो वो लोग ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो वाले क्वेश्चंस भी करके जाओगे तो तुम लोग का एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, एंड वही का वही क्वेश्चन पूछेगा। इट इज नॉट रियली एज डिफिकल्ट एज इट मे अपीयर टू बी, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नाउ नेगोशिएबल नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे अपना बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो अपन ने अभी पढ़ा था कि बाई मियर डिलीवरी हो सकता है। अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो अपने को एंडोर्समेंट भी चाहिए और डिलीवरी भी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? बेरर में खाली डिलीवरी कर सकती हूँ, अगर मेरे पास ये चेक है, ये खाली चेक है, तो मैं सिर्फ ये चेक इसको दे दूंगी एंड ये मेरा जो है नेगोशिएशन हो गया।
मैंने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज खाली पीछे साइन करके मैंने तुझे दे दिया तो अभी वो तेरा हो गया, तूने अगर किसी और को दे दिया तो वो उसका हो गया। तो यहाँ पे मियर डिलीवरी से उसका नेगोशिएशन हो सकता है, मतलब वो ट्रांसफर हो सकता है, नेगोशिएशन मतलब एक जन से दूसरे के पास में। बट जब भी मेरा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, इन दैट केस मुझे पीछे एंडोर्स तो करना है, और एंडोर्स करने के बाद मुझे अपने हाथों से वो डिलीवर भी करने का है, तो दैट इज बिकमिंग माय ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आई हैव टू एंडोर्स ऑल्सो एंड देन डिलीवर। यहाँ पे एक टिपिकल केस स्टडी जो पूछते हैं कि मिस्टर एक्स जो है उसने एंडोर्स किया एंड उसने सोचा कल जाके डिलीवर कर दूंगा, उसने ड्रॉवर में रख दिया, एंड सुबह नेक्स्ट डे जब ही उठा तभी उठा ही नहीं, वो मर गया था। तो वो उठा ही नहीं, इसके लिए जो एंडोर्समेंट हो गया था वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने जाके डिलीवरी कर दिया। इज दिस अ वैलिड एंडोर्समेंट? ओके, वापस से बोलती हूँ एक बार अगर सो रहे हो तो, कि मिस्टर एक्स जो है उसने एंडोर्स किया, एंडोर्स करके ड्रॉवर में रखा, सोचा कल उठूंगा तो जाके डिलीवरी दे दूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो उठा ही नहीं। तो इसके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है देखा कि ये एंडोर्स कर दिया है मिस्टर वाइज ने, तो उन्होंने जाके उसका डिलीवरी दे दिया। इज इट अ वैलिड एंडोर्समेंट? द आंसर इज इट इज नॉट अ वैलिड एंडोर्समेंट, बिकॉज जब भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो मुझे एंडोर्स करना है, और एंडोर्स करने के बाद डिलीवरी भी मुझे ही करना है, या बाय बाय पर्सन हु इज ऑथराइज टू डू सो। तो अगर मेरा ऑफिस बॉय जाके डिलीवर करके आता है देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो मेरे से ही एंडोर्समेंट और मेरे से ही डिलीवरी होना है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बाय मियर डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दे कैन नॉट एंडोर्स इट। So if they have to endorse, they will have to first take it in their own name, endorse it to themselves, then endorse it to Mr. Y, and then do the delivery to Mr. Y. Then it is valid. बट वो लोग खाली बाय मियर डिलीवरी वो लोग एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होना चाहिए। अभी क्लियर ऑन दिस? इसके ऊपर केस स्टडी पूछने का चांसेस बहुत हाई है। कौन सा वाला केस स्टडी है? इधर कहीं पे तो है। If a person makes the endorsement of the instrument, but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies, the legal representative of the person cannot negotiate the same by mere delivery thereof. ये एक पॉइंट के ऊपर ये केस स्टडी पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, एंड कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। अच्छा, और एक क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हारे पेपर में पूछा था, मोस्ट ऑफ यू ऑल गॉट इट राइट, जो अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था। इस जहाँ पे मैंने एंडोर्समेंट करने के पहले मैंने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दो पार्ट में फाड़ दिया है, एंड आई हैव गिवन वन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट to the person to whom I am endorsing, and then I don't give the second part, and then afterwards I ask him for the first part. So the question is the negotiation complete? तो अगर मैंने उसको फाड़ के आधा पार्ट दे दिया आधा पार्ट नहीं दिया है तो क्या एंडोर्समेंट कंप्लीट हुआ है? तो द आंसर इज नो, बिकॉज अगर मुझे कंप्लीट करना है, सॉरी, देन इन दैट केस आई विल हैव टू गिव द एंटायर इंस्ट्रूमेंट। द फैक्ट कि मैंने उसको सिर्फ एक पार्ट दिया है तो मेरा एंडोर्समेंट जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, नेगोशिएशन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डिलीवरी पूरे इंस्ट्रूमेंट का नहीं हुआ है। एंड इन सच अ केस आई कैन टेक बैक द इंस्ट्रूमेंट इफ आई वांट टू। तो दिस इज सेकंड, तो ये दो केस स्टडीज ये वाले में पूछ सकते हैं। हाँ, देन आता है अपना 138, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, वो बोलता है दैट अगर मैंने किसी को चेक दिया है, एंड ये चेक जो है वो मैंने दिया है फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट, एंड इफ दिस चेक गेट्स बाउंस्ड आफ्टर आई गिवन इट, और मैंने चेक देने के बाद बैंकर को बोला स्टॉप पेमेंट कर दो, होल्ड पे पेमेंट रख दो, अगर वैसा मैं करती हूँ, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज दैट इट विल बी कॉल्ड एज अ डिसऑनर ऑफ चेक। एंड अगर डिसऑनर ऑफ चेक होता है तो मेरे ऊपर आता है punishment, because it is a offense, it is considered to be an offense. Normally I tell you कि नहीं
पनिशमेंट याद रखोगे तो ठीक है, बट यहाँ पे अपने को पनिशमेंट जो है वो याद रखना है। क्या है पनिशमेंट? पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 2 years, और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और विद बोथ। तो इधर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फाइन लग सकता है या दोनों भी लग सकता है। 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, ट्वाइस द अमाउंट फाइन, या फिर बोथ। तो यहाँ पे अगेन केस स्टडी आ सकता है कि एक ने किसी को चेक दिया है एंड देन वो चेक जो है बाउंस हो गया है, या उसने बोला है कि जो है स्टॉप पेमेंट करा दो, तो वेदर इट इज एन ऑफेंस और नॉट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये वाले क्वेश्चन में अपने को देखने का है कि जब भी ये ट्रांसफर हो रहा है, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट जब चेक में दे रही हूँ और वो बाउंस हो रहा है या फिर मैं उसका स्टॉप पेमेंट करवा रही हूँ, तो आई हैव टू चेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या ये पेमेंट ऑफ डेट के लिए है, और इज इट फॉर अ गिफ्ट, इज इट फॉर चैरिटी, फॉर व्हाट पर्पस आर वी गिविंग द चेक। तो यहाँ पे अगर वो डेट के लिए है तो ही वो ऑफेंस है, अगर वो डेट के लिए नहीं है, अगर वो गिफ्ट है, डोनेशन है, तो देन इन दैट केस इट इज नॉट ऑफेंस। Another thing, same that we I want to discuss. I had put a question in the paper saying कि किसी ने प्रॉमिस किया था कि तेरे ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख दूंगी, उसने 1,50,000 स्पेंड कर दिया, लेकिन मैंने उसको पैसा नहीं दिया है। What are the consequences under the Indian Contract Act? Okay, now you have to read the question. I have said Indian Contract Act. तुमने क्या किया है, उसको बोला है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लेके आए हो। सो व्हेन यू आर राइटिंग यू हैव टू सी विच एक्ट आई एम आस्किंग। अगर मैंने नेगोशिएबल पूछा है एंड चेक बाउंस हुआ है, अगर वो प्रॉमिस किया है कि मैं चैरिटी करूंगा एंड फिर बाउंस होता है, तो नॉट एन ऑफेंस। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन मैंने तो तुझे पूछा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो तू मेरे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बताएगा। भले तू आंसर राइट दे रहा है, लेकिन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो मेरे को बोलेगा वो मेरे को जानने का ही नहीं, वो मेरे को आता है, मैं तेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूछ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ यू राइट द आंसर करेक्टली, बट इफ यू आर राइटिंग इट अंडर द रॉन्ग एक्ट, तो तेरे को मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे मैंने केवे टेम्पटर का बोला था, केवे टेम्पटर अपना कॉन्ट्रैक्ट में भी है, केवे टेम्पटर अपना सेल ऑफ गुड्स में भी है। तो अगर मैं एक्सेप्शंस टू केवी टेम्पटर पूछती हूँ तो दोनों में मेरा आंसर चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू फर्स्ट रीड किधर का एक्सेप्शन पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूछ रहा है कि सेल ऑफ गुड्स का पूछा है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट। सेल ऑफ गुड्स पूछा है तो कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा, भले आंसर राइट है, 0 मार्क्स मिलेगा, बिकॉज मैंने तुझे वो पूछा ही नहीं है, दैट आई डोंट वांट टू नो। सो प्लीज सी विच एक्ट आई एम आस्किंग अंडर। ये गिफ्ट और डोनेशन वहां पे भी आ सकता है। अरे, तो गिफ्ट और डोनेशन अपना कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में भी है, राइट? गिफ्ट चैरिटी, तो वहां पे भी वो आई कैन आस्क यू। आई कैन ऑल्सो आस्क यू अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो सी वेयर आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, विच एक्ट आई एम आस्किंग यू, अकॉर्डिंगली आंसर। इफ इट इज नॉट आस्क फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, you don't have to answer under 138. Okay. So, this is about your 138. Very, very important. Very high chances of a practical case study coming. So, here अपने practical case study कहाँ कहाँ पे मैंने बोला है तुम लोग को। एक ये डिसऑनर ऑफ चेक में आ सकता है, एक ये नेगोशिएशन का जो सेक्शन 57 है कि इंसान मर गया और उसका आधा रह गया। फिर दूसरा है कि अगर पार्ट फाड़ दिया है और एक पार्ट डिलीवर हुआ, दूसरा पार्ट डिलीवर नहीं हुआ, उसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकता है। Inchoate ambiguous, I've said that chances of a theory descriptive question is higher. Then inland foreign definitely case study question. एंड चेक और ये सब पे तो थ्योरी क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है, प्रैक्टिकल के कम है। देन लास्ट पार्ट जो अपना है प्रेजेंटमेंट, दैट इज फुल थ्योरी, उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल की स्टडी आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, इट विल कम एज अ थ्योरी ओनली। Yes, presentment of instruments, the last part which is on theory. यहाँ पे we will use the institute का जो अपना charts है। 1 second, I'll just download that quickly. आज मैं थोड़ा नींद में ही हूँ। We haven't slept properly yesterday because the results came very late. Supposed to come in the morning, then they said in the evening. Evening को बोला night. उससे अच्छा नेक्स्ट डे देते, बच्चे बेचारे इतने स्ट्रेस में बैठे थे सब लोग। मैम इंटर के रिजल्ट्स भी इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं क्या? नहीं। हम्म।
इंटर का रिजल्ट से फाउंडेशन इंटर दे आर मेकिंग इट वेरी टफ टू क्लियर नाउडेज. Final they are giving good results in the last 2 3 attempt, but otherwise थोड़ा difficult है. They want to make the entry tough. अपने को रिजल्ट का नहीं सोचने का, अपने को अपना सोचने का. अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो अपना रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, बाकी लोग का जो भी आना है. Yes. So this is the chart. If we have written this in class, if you haven't written this part, just take a print or a Xerox of this and just paste it in your book. Yes. Now presentment जो है, presentment में क्या होता है कि मैं, हाँ, प्रेजेंट करती हूँ. जैसे ही मैं प्रेजेंट करती हूँ उसके बाद उसका पेमेंट होना चाहिए. तो प्रेजेंटमेंट आफ्टर साइट है, आफ्टर आज है. बेसिकली इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटमेंट दैट वी हैव. सो नाउ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, ये अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे 48 आवर्स में, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज आर गिवन टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस. ड्रॉई को हमेशा 48 आवर्स मिलता है एक्सेप्टेंस के लिए, याद रखने का, इन केस इट इज आस्क्ड. तो यहाँ पे क्या होता है कि मुझे प्रेजेंट किया, तो मेरे पास आया, मैंने देखा आफ्टर साइट, तो प्रेजेंट किया आफ्टर साइट, देन इन दैट केस आई हैव टू प्रेजेंट, मतलब तू जब भी लेके आता है मेरे प्रेजेंटमेंट के लिए, तो इन दैट केस इट हैज टू बी डन एट अ रीजनेबल टाइम, बिजनेस वर्किंग आवर्स में आना है. तो शाम को, रात को 2 बजे लेके आएगा, तो इन दैट केस वो प्रेजेंटमेंट जो है वो वैलिड नहीं है. सो 9 to 6, 10 to 6 के बीच में अगर तू आके प्रेजेंट करता है, देन इट इज अ वैलिड प्रेजेंटमेंट. अगर प्रेजेंटमेंट नहीं किया तो किसी का भी लायबिलिटी नहीं आएगा, बिकॉज प्रेजेंट करने के बाद पेमेंट होने वाला है. सो अगर प्रेजेंट नहीं किया तो लायबिलिटी नहीं आएगा. If bill of exchange is directed to a drawee at a particular place, it must be presented at that place. So if I tell you that you have to present this to me at Andheri station, platform number 4, in that case you have to come at that place only and then present it to me. और किधर तो मेरे को present नहीं कर सकता. अगर नहीं present कर पाया है इंसान, नहीं आया, तो क्या होगा, that we will study. But अगर place define किया कि यहाँ पे मिलना है, then in that case you have to meet me there only. If the drawing not found after reasonable search, BOE is dishonored. So if I am unable to find the drawee, who is drawee? तो मिसेस रीड जो है वो अपनी ड्रॉई है, मुझे उसको प्रेजेंट करने का है, क्योंकि ये प्रेजेंटमेंट का है. तो अगर मुझे इसको प्रेजेंट करना है, लेकिन मेरे को मिसेस रीड का किधर पता ही नहीं मिला, शी इज, आई एम अनेबल टू फाइंड मिसेस रीड, देन इन दैट केस जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है. देन प्रेजेंटमेंट फॉर promissory note for site. Promissory note payable at a certain period after sight must be presented within a reasonable time. तो बोलता है कि आफ्टर साइट अगर promissory note है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये promissory note है, तो यहाँ पे अगर promissory note है वो मुझे आफ्टर साइट, आफ्टर रीजनेबल टाइम मुझे अगर पे करना है, तो इन दैट केस आई हैव टू प्रेजेंट इट एट अ रीजनेबल टाइम बिजनेस डे पे. यहाँ पे इन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट दोनों में सेम रहेगा जो प्रेजेंटमेंट आफ्टर साइट है. अगर डिफॉल्ट होता है तो वो भी सेम रहेगा कि किसी भी पार्टी का लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे ड्रॉई होता है, यहाँ पे अपना जो होता है पेई होता है, पेई क्या, मेकर होता है, जिसको मैं प्रेजेंट करूंगी. ओके. नाउ रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट, किसको मेरे को प्रेजेंट करना है, तो मैं मेकर को कर सकती हूँ, या एक्सेप्टर को, या ड्रॉई को. करेक्ट. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मैं एक्सेप्टर या ड्रॉई को करूंगी, तो मैं मिसेस रीत को करूंगी. एंड अगर मिसेस रीत ने एक्सेप्टर भी है तो मिसेस रीत को ही करूंगी. लेकिन अगर मिसेस रीत का एक्सेप्टर मिस्टर रीत है, तो मैं मिसेस रीत को कर सकती हूँ या मिस्टर रीत को कर सकती हूँ. एंड प्रोमिसरी नोट में तो एक ही इंसान है, जिसने प्रॉमिस किया है उसको ही मैं प्रेजेंट करूंगी. अगर डिफॉल्ट है तो कोई पार्टी का लायबिलिटी नहीं है. दर्शन, व्हाट आर यू डूइंग? देन एक्सेप्शन है, इफ promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, no presentment is necessary. तो अगर वो payable on demand है एंड
कोई स्पेसिफाइड स्पेस नहीं बोला है कि मेरे को अंधेरी स्टेशन प्लेटफॉर्म 4 पे आके मिलना है। तो अगर प्लेस नहीं स्पेसिफाई किया है, ऑन डिमांड है, तो मैं प्रेजेंटमेंट नहीं भी करूंगी तो भी चल जाएगा। दैट इज अ एक्सेप्शन हियर। यूजुअल वर्किंग आवर्स के अंदर होना चाहिए। इफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर डेट और साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मेच्योरिटी, जब उसका मेच्योरिटी होता है। तो अगर प्रोमिसरी नोट में मैंने लिखा है कि 3 मंथ्स में मैं प्रेजेंट करूंगी, तो 3 मंथ्स जैसे ही होता है उसके बाद में प्रेजेंट कर सकती हूँ, उसके पहले मैं नहीं कर सकती हूँ। Promissory note payable in installments must be presented for payment on third day after fixed for payment of each installment। तो अगर मैंने पेमेंट इंस्टॉलमेंट में बोला है कि 10,000 आज, 10,000 एक महीने के बाद, थर्ड मंथ में 10,000, ऐसे मैंने उसको बोला है, तो 3 days आफ्टर द डेट इज फिक्स्ड उसके अंदर मेरे को उसको इंस्टॉलमेंट के लिए प्रेजेंट करने का है। Instrument payable at a specified place must be presented at that space. When no exclusive place specified, then it can be presented at place of business or usual residence. If no known place for usual residence or business, then can be made to him wherever he is found. तो either मैं उसके ऑफिस में जाके प्रेजेंट करूंगी या घर पे जाके करूंगी। लेकिन ऑफिस और घर दोनों भी अगर मुझे नहीं पता है या मुझे नहीं मिल रहा है या आई एम अनेबल टू फाइंड हिम देयर, देन अगर वो मुझे रास्ते में चलते चलते मेले में मिल गया तो मैं मेले में भी उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ। दैट इज परफेक्टली ओके। इंस्ट्रूमेंट फॉर पेबल ऑन डिमांड मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव्ड बाय द होल्डर। डिले इन प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड इफ द डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर। तो अगर बियॉन्ड माय कंट्रोल है, जैसे कोविड चल रहा है, विच इज वाई आई एम अनेबल टू प्रेजेंट इट बिकॉज आई एम अनेबल टू स्टेप आउट, लॉकडाउन है इसके लिए, देन इन दैट केस प्रेजेंटमेंट जो है वो बियॉन्ड माय कंट्रोल है। तो अगर वो डिले हो जाता है तो नॉट अ प्रॉब्लम, अदरवाइज वो डिले नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज ओके। इसके ऊपर क्वेश्चंस लेस लाइकली। वेयर प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, इसके ऊपर आई थिंक May 24 में वो लोग ने थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या बोल रहा है, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिस टाइम कि तुम लोग को इधर डिसऑनर या एंडोर्समेंट का कोई तो केस स्टडी आएगा, ऐसा मेरे को अंदर से लग रहा है। मेरे को पेपर का कोई पता नहीं, बट आई फील दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। इट वोंट बी अ थ्योरी क्वेश्चन इन योर अटेम्प्ट इज व्हाट आई फील। तो प्रेजेंटमेंट जो है अननेसेसरी कब होगा? प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी कभी होगा कि जब मुझे प्रेजेंटमेंट करना ही नहीं है। तो मेकर ड्रॉई एक्सेप्ट प्रिवेंट्स प्रेजेंटमेंट, मुझे उसको मिलके देना है लेकिन ही इज नॉट गिविंग अपॉइंटमेंट, ही इज नॉट मीटिंग मी एट अ प्लेस वेर आई हैव टू गिव इट, और व्हेन आई गो टू द हाउस दे से दैट ही इज नॉट एट होम। तो वहां पे इफ ही इज प्रिवेंटिंग मेकर ड्रॉई या पेजेस को मुझे प्रेजेंट करना है, वो प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम मेकिंग द अलाउिंग मी टू डू द प्रेजेंटेशन, देन इन दैट केस एक्ट सेज मैं तेरे को प्रोटेक्शन देता है, you don't have to present. Without presentment also he has to make the payment to you. Okay, then payable at business place and that's closed on business day during usual working hours। जो प्लेस मुझे बोला है उसने बोला है मेरे ऑफिस में आके प्रेजेंट करना, लेकिन मैं बिजनेस डे पे यूजुअल बिजनेस वर्किंग आवर्स में जब भी जाती हूँ तो वो ऑफिस क्लोज्ड ही होता है। देन इन दैट केस एक्ट सेज नो वरीज, आई विल प्रोटेक्ट यू, तेरे को प्रेजेंट नहीं करना है। पेबल एट द स्पेसिफाइड प्लेस, लाइबल पार्टी डजंट अटेंड, मैंने बोला अंधेरी स्टेशन प्लेटफॉर्म 4 पे आ, लेकिन एट दैट प्लेटफॉर्म 4 यू कम बट आई एम नॉट देयर, देन इन दैट केस प्रेजेंटमेंट करना जरूरी नहीं है, यू हैव टू मेक द पेमेंट। नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड लाइबल पार्टी नॉट फाउंड आफ्टर ड्यू सर्च, तुम लोग मेरे को प्रेजेंट करने वाले थे, तुमने मेरे को बहुत ढूंढा लेकिन मैं किधर मिली नहीं, देन इन दैट केस एक्ट इज सेइंग नो वरीज, यू डोंट हैव टू प्रेजेंट। लायबल पार्टी एंगेज टू पे नॉट विथस्टैंडिंग नॉट नॉन प्रेजेंटमेंट, तो यहाँ पे जो लायबल पार्टी है उसको पे करना ही पड़ेगा अगर नॉन प्रेजेंटमेंट नहीं भी की प्रेजेंटमेंट नहीं भी किया है, देन ऑल्सो द लायबल पार्टी विल हैव टू पे। लायबल पार्टी ने अगर पार्ट पेमेंट कर दिया है, 20,000 पे करना था उसने 10,000 पे कर दिया, तो बैलेंस 10,000 के लिए वापस से मुझे प्रेजेंटमेंट नहीं करना है। लायबल पार्टी वेव्स ऑफ इज राइट टू टेक द एडवांटेज, लायबल पार्टी जो है वो बोलता है कि मुझे ऐसा प्रेजेंटमेंट नहीं चाहिए, तेरे को जब भी पैसा चाहिए मैं तेरे को पैसा दे देगा। एंड इफ ड्रॉअर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, तो ड्रॉअर को जो है कुछ प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ है, उसकी वजह से कोई डैमेज नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस उसको जो है प्रेजेंटमेंट नहीं करना है। तो दीज 8 पॉइंट्स
रिमेंबर देम एज इट इज, बिकॉज अगर ये थ्योरी में पूछा तो ये तुम लोग को लिखने को आना चाहिए। लेफ्ट साइड का जो अपना पार्ट है अबाउट रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट, दिस यू विल बी एबल टू आंसर इरिस्पेक्टिव, वैसे भी थ्योरी में नहीं पूछेंगे तो that is okay, but presentment unnecessary because it is already asked May 24 में, it can be as a theory question, so please remember these 8 points। डिसऑनर अपन ने किया है, खाली ये रूल्स टू कॉम्पेंसेशन देख लो कि अगर डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है तो अमाउंट ड्यू ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्लेम कर सकती हूँ, प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड इन नोटिंग प्रोटेस्टिंग, तो जो भी मेरे को पेपर वर्क करने का जो भी एक्सपेंस है वो मैं क्लेम कर सकती हूँ, और उसके साथ 18% इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन। अगेन ये 18% के ऊपर इन इंटर दे यूज टू आस्क अ केस स्टडी कि अगर डिसऑनर होता है तो व्हाट ऑल आई कैन क्लेम अंडर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देन इन दैट केस यू कैन से अमाउंट ड्यू, एक्सपेंसेस एंड 18% जो मेरा इंटरेस्ट है। सो ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज एंड ये वाला पेज, दिस यू शुड हैव इन योर बुक, एंड प्रेजेंटमेंट प्लीज डू इट फ्रॉम हियर, इट इज वेरी नाइसली गिवन इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्म, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, तो ये तुम लोग को यहाँ से ही पढ़ना है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, that is your Indian regulatory framework. Now, in Indian regulatory framework, questions I had asked in the paper, and most of you could write it nicely. So, most of people had written it well, but I thought I'll just brush up through what is there. And also, yesterday I wanted to send you the chart book, but I didn't send it because I thought कि ये वाला जो पार्ट है आज एक बार सीख लेते हैं, और इसको मैं जितना शॉर्ट फॉर्म में चार्ट बुक में ऐड कर सकती हूँ, आई विल ऐड इट देयर सो दैट यू कैन रेफर दैट बिफोर योर एग्जाम डे, मतलब on the exam day you can quickly use that for revision. Just 1 second, give me a moment. One second. यस। सो योर सोर्सेस ऑफ लॉ, यहाँ पे क्या अपना देखेंगे कि लॉ क्या है, तो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो लॉ जब भी बनाता है तो वो नॉर्मल एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सबके लिए एक स्टैंडर्ड रूल मेंटेन करने के लिए लॉ बनाते हैं, अलग अलग टाइप के अपने लॉ बनाते हैं। बट जब भी लॉ बनता है तो लॉ जो है पहले अपना होता है बिल 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 जो है जब भी लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद अपना जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विल आल्सो साइन, एंड वंस ही साइन एंड इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट, तो अपना बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, नेक्स्ट ईयर यू विल स्टडी अ लॉट मोर इन डिटेल अबाउट इट। तो बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस है विच टेक्स अराउंड 7 to 8 years एटलीस्ट, समटाइम्स 12 to 15 years टू गेट द लॉ इन प्लेस। सो लॉ जो है वो ऐसे ही नहीं बनता है, पहले बिल होता है, बिल के ऊपर लोग आके उनका रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि दिस इज व्हाट यू आई थिंक शुड बी राइट, दिस इज व्हाट शुड नॉट बी देयर, तो ऐसे करके वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन वो दोनों इसमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होके उसके बाद वो प्रेसिडेंट का असेंट मिलके देन इट इज पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गजेट। एक बार वो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हो गया, ऑफिशियल गजेट क्या होता है, ऑफिशियल गजेट इज नथिंग बट अ पब्लिकेशन, जैसे न्यूज लेटर होता है ना अपना, सीए इंस्टीट्यूट का कैसा न्यूज लेटर आता है, वैसा जो गवर्नमेंट का न्यूज लेटर होता है उसको ऑफिशियल गजेट बोलते हैं, जहाँ पे सारा जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट देना चाहता है, एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज पास, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और एक्ट, एनीथिंग दैट दे हैव पास दे विल मेंशन इट। तो एक बार वहां पे आ गया मतलब दैट इज एन ऑथेंटिक सोर्स of information that is there, so that law will come into force from that particular date. Now अपने पास अलग अलग टाइप के लॉ है। क्रिमिनल लॉ है, जब भी मैं क्रिमिनल लॉ बोलती हूँ तो यहाँ पे वायलेशंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स और पनिशमेंट ऑफ द सेम, यहाँ पे कौन सी एक्ट कवर्ड है, तो अपना इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कवर्ड है। एंड यहाँ पे वो लोग डिफाइन करते हैं कि अगर मर्डर, रेप, थेफ्ट,
फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सब जब भी होता है ये अपने क्रिमिनल ऑफेंसेस है। तो इसके ऊपर हाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन इज व्हाट विल बी कवर्ड हियर। तो ये क्रिमिनल लॉ होता है। सिविल लॉ उसका जो होता है, यहाँ पे क्रिमिनल नहीं कवर्ड होता है, बट इट विल कवर थिंग्स लाइक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये अपन ने पढ़ा था ना कि जो सिविल लॉ होता है जहाँ पे मेंस रिया नहीं होता है, गिल्टी माइंड नहीं होता है, तो यहाँ पे सिविल है। तो सिविल लॉ में ये सारे जो मेरे लॉज है वो कवर्ड होते हैं। देन it focuses on dispute rather than on punishment. Okay, this is one point we can write in the chart book which will help you. देन यू हैव योर कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब मेरे जो केस स्टडीज होते हैं, मैंने तुम लोग को बोला था कि केस स्टडीज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर रीडिंग लॉ एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट लॉ। तो केस स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज केस स्टडीज डिपेंडिंग ऑन किसने वो केस स्टडी पास किया, वी हैव डिस्कस दिस इन क्लास कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट का जो केस स्टडी है वो ऑल ओवर इंडिया सबके ऊपर वो एप्लीकेबिलिटी होता है। हाई कोर्ट का अगर जजमेंट है तो हाई कोर्ट का केस स्टडी है तो इट इज एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड दूसरे स्टेट जो है वो उसको रिफर कर सकते हैं, बट एप्लीकेबिलिटी वो स्टेट के ऊपर तो कंपलसरी होता है, बाकी के ऊपर करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे टाइप्स होता है। एंड देन अगर अपना आईटैट या उसके नीचे के जो कोर्ट्स होते हैं वो उसके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो है, जो जुरिस्डिक्शन में उस पर एप्लीकेबिलिटी होता है। बट अगर आईटैट ने नेगेटिव रूलिंग दिया है, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल जो हाई कोर्ट के नीचे है सपोज, तो अगर इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट में बोला है कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा, बट हाई कोर्ट बोलता है नहीं लगेगा, तो हाई कोर्ट का वजन ज्यादा है क्योंकि वो उससे बड़ा कोर्ट है। या हाई कोर्ट ने बोला है कि टैक्स लगेगा बट सुप्रीम कोर्ट बोलता है टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट का सुनेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अबाउ द व्हाट डू यू कॉल हाई कोर्ट। सो हियर सी, वन सेकेंड। यस, स्ट्रक्चर में अपन ने देखा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स बॉडी है, करेक्ट, सबसे ऊपर ये एपेक्स होता है और उसका जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले कैसे होता था कि 7 मेंबर एक साथ मिलके वो लोग डिसीजन करते, तो यू हैव टू प्रेजेंट इट टू द एंटायर बेंच। अभी वो बेंच में अपने पास टोटल 34 लोग हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस के ऊपर अपना जो लेटेस्ट था उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ था। एंड यहाँ पे अपने को रिट पिटिशन फाइल करना है अगर मुझे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो। व्हाट इज रिट पिटिशन तुम लोग को नहीं है तो प्लीज डोंट गेट इनटू दैट। हाई कोर्ट पे पास भी जाना है तो वहां पे भी मुझे रिट पिटिशन फाइल करना पड़ता है, वो आर्टिकल 226 में होता है या आर्टिकल 32 में अलाउ करता है। तो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एक लेवल नीचे होता है। यहाँ पे अपने पास टोटल देर आर 25 हाई कोर्ट्स, वन फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड 6 स्टेट्स शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट। तो 6 स्टेट्स के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसमें अपने पास 7 जन का बेंच होता था, अभी अपने पास 34 जन का बेंच होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसमें हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। उसके बाद अपना होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर एक स्टेट के लिए अलग से होता है, हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से होता है। तो अपने पास टोटल जो है 25 हाई कोर्ट्स है। देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के भी नीचे है। इसमें दो टाइप का है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद सिविल लॉ, दैट इज मैटर्स कॉन्ट्रैक्चुअल जो डिस्प्यूट है, एंड दूसरा होता है कोर्ट ऑफ सेशन जो क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर डिस्कस करता है एंड उसका जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट से कम होता है। एंड देन यू हैव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए होता है जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होता है। लिखा है किधर, तो हाँ, पॉपुलेशन इज 10 lakhs और मोर, तो अपने पास होता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। सो दिस इज हाउ यू विल रिमेम्बर द 4 टाइप्स ऑफ कोर्ट। इसके अलावा तुम लोग को और कोई कोर्ट्स का डिटेल्स याद नहीं रखना है। एंड देन यू हैव लास्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पे दो लीगल मैक्सिम है, एक तो है जस्ट नेचुरल एंड दूसरा है ऑडी ऑल्टरम पार्टम। कि बेसिकली वो क्या बोलता है कि जब भी मैं कोई केस पास करता हूँ तो मुझे एक तो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, बेसिकली उसको जस्टिस मिलना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर केस, एंड मुझे जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए। ऐसे ही मैं कोई भी चीज पास नहीं कर सकती, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए। तो
you're the other party or give the other party a fair hearing। तो अगर तूने गलती किया है तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती नहीं तेरे को फांसी होगा, तूने मर्डर किया है तेरे को फांसी होगा, बट आई हैव टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि यू डिडंट वांट टू डू द मर्डर बट इट वाज अ सेल्फ डिफेंस, करेक्ट, वो तेरे को मारने वाला था, तो टू सेव योर सेल्फ यू किल्ड दैट पर्सन, देन इट इज अ मर्डर बट दैट इज इन सेल्फ डिफेंस, दैट इज समथिंग विच इज अलाउड। बट तू ऐसे ही जाते जाते तेरे को मन हुआ किसी को उड़ा देता हूँ, वो उड़ा दिया, तो देन दैट इज नॉट अलाउड। So he's saying you have to give that other party opportunity of being heard before you, take any action against that particular party. Now, ये जो लॉज होते हैं, ये लॉ मैनेज करने के लिए अपने पास जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मैनेज करता है कि जो लॉ बनाया गया है वो लॉ एनफोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर अपना लॉ स्टेट लॉ है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, अगर वो सेंट्रल लॉ है जैसे अपना इनकम टैक्स कॉन्ट्रैक्ट ये सब सेंट्रल लॉ है तो ये जो उसके मिनिस्ट्रीज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर, जैसे अपना बीएमसी है वो स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन तेरा इनकम टैक्स है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, ये सब सेंट्रल का मैटर है तो वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे मेरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसके नीचे क्या क्या आता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, तो और इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंट सर्विस भी इसके नीचे आता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन से डिपार्टमेंट है, तो इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो ये सारे उसके नीचे के डिपार्टमेंट है। अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर इट एज इट इज इन केस इट इज आस्क्ड। Then Ministry of Corporate Affairs, very high chances of being asked because that is what you're studying this year। तो यहाँ पे अपना कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट जो है गवर्न होता है। इसके अलावा अपने पास एक होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो जब मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ, तो इंसॉल्वेंट इज व्हेन लायबिलिटीज आर मोर देन द असेट, देन आई हैव टू गो अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जाना है टू डिक्लेयर माई सेल्फ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट और बैंक्रप्सी के बीच में इंसॉल्वेंट जो है वो बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट जो है, कंपनीज, एलएलपी, ये लोग इंसॉल्वेंट होते हैं। इंडिविजुअल जो होता है जब भी उसका लायबिलिटीज मोर देन असेट होता है तो उसको बैंक्रप्ट बोलते हैं, तो दैट इज माय बैंक्रप्सी कोड। तो वो मुझे डिक्लेयर होना है इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्ट, तो दैट प्रोसेस हैपेंस अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी। तो एमसीए में अपना एलएलपी कंपनी अपने को मालूम है, उसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक आता है, दैट इज व्हाट यू विल रिमेम्बर। इसमें हाईएस्ट पोस्ट होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर इसके बाद अपना होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय इसको बोलते हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इंटीरियर मिनिस्ट्री है जो मेंटेन करता है इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। तो इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका चांसेस थोड़ा कम है पूछने का बिकॉज ये अपन पढ़ते नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, उनका अलग इश्यूज चलता है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ होम। फिर अपना डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन, ये आता है। तो ये जैसा है वैसा ही तुमको याद रखना है, इसमें इज नॉट मच यू कैन डू। नहीं आएगा तो फिर यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन और यू हैव टू जस्ट राइट समथिंग। देन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, तो यहाँ पे जो मेरे लीगल अफेयर्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है वो यहाँ पे मेरे कंसिडर होते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली जस्टिस मिलने के लिए मेरा जो भी प्रोविजंस है या जो भी लॉज है वो यहाँ पे मेरा आएगा, लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। सेबी, सेबी अगेन वेरी वेरी हाई चांसेस कि तुम लोग को एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग May 24 में पूछा है ऑन सेबी। तो यहाँ पे
क्या बोलता है सेबी के बारे में? सेबी जो है इज बेसिकली एप्लीकेबल टू कंपनीज इन इंडिया। जो अपना लिस्टेड कंपनीज होता है वो सारा सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होता है। विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड विद सेबी यू कैन नॉट हैव एनीथिंग। सेबी जो है उसके पास पहले पावर्स ज्यादा नहीं थे, मतलब वो पहले से बन गया। इफ यू सी इट इज फॉर्म्ड इन 1988 बट इट हैड एब्सोल्युटली नो पावर्स। बट जब भी सत्यम का फ्रॉड हुआ, at that point of time SEBI had to be given powers. So if you see 1992 में SEBI को powers मिले हैं, and it is some all the powers are given to SEBI for listed companies. So today SEBI is such a deadly authority that if someone calls me, you, anyone on the earth saying कि भाई मैं SEBI से बोल रहा हूँ, anyone on in India basically, कि भाई मैं SEBI से बोल रहा हूँ, तो you will get almost a mini heart attack कि भाई SEBI calling me, because इतना deadly authority है वो। देन यू हैव योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपना जो नोट छापता है, पैसा मिलता है, ये सब जो है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना करेंसी मेंटेन करता है। कितना पैसा छापना है, पैसा मार्केट में से लेना है, 2000 का नोट जो है वो निकालना है, ये सब जो इश्यूज है, जो मैटर्स है, वो ये कंट्रोल करता है। तो ये अपना बन गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन पूछ सकते हैं क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुम लोग को है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सिमिलर है, तो रिजर्व बैंक के ऊपर भी पूछ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तीन थ्योरी में आ सकता है। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अपना आता है। इट इज कवर्स इंडिविजुअल कंपनीज, एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। तो जब भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना है या बैंक्रप्ट होना है, तो इन दैट केस तुम्हारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आएगा। इट हैंडल्स केसेस यूजिंग एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी अपने पास है, अपना कंपनीज एक्ट में आता है, एंड देयर इज अनदर ट्रिब्यूनल कॉल एज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो उनके पास जो केसेस आते हैं वो भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के पास जा सकते हैं। एक सेकेंड चालू रखिए। हेलो। हाँ चलिए। और ओके, देन इंसॉल्वेंसी स्ट्रक्चर तो अपन ने कर लिया है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड दैट इज इट फॉर फाउंडेशन। अभी आगे का जो पढ़ेंगे वो अपना, आई एम होपिंग इंटर का पढ़ेंगे। अच्छे से पेपर लिखो। लाइक आई टोल्ड यू, केस स्टडी क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो इसमें अपना ट्राई करो कि जो पहले लॉ लिखो, क्या लॉ है, देन राइट द फैक्ट्स एंड देन राइट द आंसर। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि भाई मेरे को लॉ जो है वो पता नहीं है, तो देन इन दैट केस स्टार्ट विद द फैक्ट्स, डोंट स्टार्ट विद द लॉ। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, लाइक यू नो द आंसर, अगर सेल बाय सैंपल है तो अपने को आंसर पता है कि ये आंसर है, तो अगर आंसर पता है तो लॉ से स्टार्ट करो। Otherwise, start with the facts of the case and then go to the law and then write the answer if you're not very confident. But no matter how confident you are, please don't start the answer with the answer itself कि ये आंसर है, yes or no, जो भी है क्वेश्चन में पूछा है उसके बेसिस पे, वैसा मत स्टार्ट करना। पेपर सॉल्विंग आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव डन, स्पेशली जो जैन 25 वाले हैं, तो तुम लोग ने पेपर्स लिखे हैं, सो यू हैव अ ब्रॉड आइडिया ऑफ हाउ द पेपर्स आर। फर्स्ट क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ना है, पहले बाकी के क्वेश्चंस पढ़ना है रीडिंग टाइम में, एंड डिटरमाइन करना है कि मुझे इसमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर करना है। एंड देन आफ्टर दैट यू आर डन, गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव इन two of my inter and final ka first papers, we I've read the what do you call, the question first, the first question, and I've had a very tough time। इतना खराब कि मुझे लगा था कि मैं एग्जाम छोड़ के निकल जाऊं, वैसा वाला। बट सो डोंट रीड द फर्स्ट पेपर फर्स्ट, एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि एग्जाम, अगर एग्जाम हॉल में बैठ के भी अगर तुमको ऐसे लग रहा है कि भाई paper बहुत difficult, I won't be able to clear this, do not leave the exam hall. Trust me, I've been there, I've done this।
जब मुझे मेरे एफएम का इंटर का पेपर था, मुझे से लगा था कि आई जस्ट वांट टू लीव द एग्जाम, आई डोंट थिंक आई कैन राइट दिस पेपर, बट आई मैनेज टू सिट थ्रू दैट 3 hours। जितना आता है उतना लिखो, बिकॉज पेपर में फॉर एवरी स्टेप दैट यू डू, वेदर थियोरी और वेदर प्रैक्टिकल, एवरी स्टेप दैट यू राइट यू गेट मार्क्स फॉर दैट। तो तुम अभी 3 घंटा पैसा भर दिया है, 3 घंटा और कुछ अपने पास काम है नहीं, तो अपने को क्या करने का, उधर बैठ के जितना आता है, जो भी आता है लिख लो। गलत तो गलत, राइट वट एवर यू रीड द क्वेश्चन, तेरे को वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद वट एवर यू नो अबाउट दैट क्वेश्चन, राइट इट, इट्स ओके, बट डोंट लीव एनीथिंग ब्लैंक। इफ यू हैव द टाइम, अगर पेपर छूट रहा है, ब्लैंक हो गया तो ठीक है, वो अलग बात है। बट अगर अपने पास टाइम है तो अपने को जल्दी निकलने का, आधा घंटा ऐसा, अपने को कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स है नहीं, वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है कि अपने को सॉल्व करने जाने का है, तो अपने को 3 hours पूरा का पूरा उधर ही बैठने का है। एंड सी द क्वेश्चन, नहीं आता है तो जो आता है लिखो, बट राइट एंड कम, डोंट लीव इट ब्लैंक एंड कम। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। एट एनी पॉइंट इन द एग्जामिनेशन ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट पेपर से वेरी डिफिकल्ट है, तो फर्स्ट पेपर लिखने के बाद अपने को लगा कि दिस तो आई कांट क्लियर ओनली, तो मेरे को आगे का पेपर नहीं देना है, नहीं, ऐसा नहीं करने का। अगेन मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, फाइनल में मेरा 20 मार्क्स का पेपर या 30 मार्क्स का पेपर छूट गया था इन द फर्स्ट पेपर इटसेल्फ, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि भाई फेल ही होना है, बिकॉज नाउ देर इज नो वे दैट आफ्टर राइटिंग 80 मार्क्स आई एम गोइंग टू गेट 50। बहुत डिफिकल्ट पेपर था एक तो मुझे लगा था मैं 100% फेल हो जाऊंगी, बट आई थॉट कि अभी पैसा भरा है तो लिख लेते पेपर। सो आई रोट दी अदर पेपर्स, आई रोट देम वेल, बिकॉज इन केस अगर ये नहीं क्लियर होता है तो एटलीस्ट जहाँ पे एग्जामेशन मिले मैं ले लेती हूँ, ऐसा सोच के मैंने लिखा था। तो 80 मार्क्स में से भी 66 आ गए थे। तो क्या होता है कि पेपर जब भी टफ होता है जनरली, ओके नाउ इंस्टीट्यूट हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फाउंडेशन एंड इंटर, बट जनरली ऐसा होता है कि जो पेपर डिफिकल्ट होता है उसमें अपने को व्हाट डू यू से, मार्क्स का स्कोरिंग थोड़ा लीनियंट होता है, जनरली दैट इज द केस, नॉट ऑलवेज। तो इसके लिए अगर पेपर डिफिकल्ट है तो थोड़ा लीनियंट चेक करके निकल सकता है। जैसे फाइनल में एफएम का पेपर जो था टफ था, yesterday one student has scored 100 on 100 in FM. I have never ever heard. I feel he'll be the only person in the institute जिसने सीए फाइनल लेवल पे 100 on 100 मिला है, दूसरे को 97 मिला है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्क्स ओवरऑल थोड़ा अच्छा मिलेगा अगर तेरा पेपर डिफिकल्ट है, ऐसा चांसेस जनरली ऐसा ही होता है, इज इन माय व्यू, बट नॉट ऑलवेज। कभी कभी पेपर टफ एंड करेक्शन भी वैसा ही टफ, वैसा भी हो सकता है, बट अपने को मालूम नहीं है ना अपना नसीब में कैसा है। सो अगर पेपर टफ है, अगर ऐसे लगता है कि नहीं क्लियर होएगा मेरे को, तो भी बाकी का एग्जाम अपने को देने का ही है। देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट गिव द एग्जाम, यू हैव टू राइट द पेपर बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट। कोई भले कुछ भी तुमको बोले कि नहीं होएगा नहीं होएगा, अपने को अपने पे कॉन्फिडेंस रखने का और दे के आने का। थियोरी पेपर्स में चांसेस ऐसा होता है कि यू नो ऑन द लास्ट डे यू फील कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है मैं भूल रही हूँ। मैं आज तुम लोग को लॉ सिखा रही हूँ, बट जब मैं लॉ का पेपर लिखती थी मेरे को एग्जैक्ट सेम फीलिंग, और मैंने बहुत लॉ लिखा है क्योंकि सीएस में सिर्फ लॉ ही लॉ था, तो ऐसा फीलिंग आता है कि यार मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। इफ यू हैव स्टडीड, तेरे को एग्जाम में याद आएगा, तेरे ब्रेन पे कॉन्फिडेंस रख, वो किधर तो तेरे ब्रेन के कोई तो कॉर्नर में रहेगा, वो आएगा एग्जाम में तेरे को याद। सो डोंट वरी, एंड इट इज वेरी नॉर्मल टू फील कि मेरे को याद नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकल पेपर्स में ऑफ कोर्स सिली मिस्टेक मत करना, कैलकुलेटर लेके जाओगे बराबर से, लेके जो भी कैलकुलेशंस करने का है वो करना। प्रैक्टिस करते रहो जब तक, अभी एग्जाम जब तक है। कीप रीडिंग एज मच एज पॉसिबल, मेक श्योर यू स्पेंड 12 hours 14 hours वट एवर यू वॉन्ट टू स्पेंड स्टडिंग। एंड वंस द एग्जाम्स आर ओवर तो तुम लोग फ्री है, बाद में तुम लोग को जो नेटफ्लिक्स देखना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना है, जो करना है कर सकते हैं, बट टिल द एग्जाम डेट प्लीज एंश्योर कि एकदम बेस्ट करें। न्यू ईयर पे लोग पार्टी करेंगे, करने देने का, अपने को पार्टी नहीं करने का है, क्योंकि अपना एग्जाम है, तो बराबर से पढ़ने का। जो लोग को पार्टी करना है वेरी नाइस, करो पार्टी, इंस्टाग्राम पे जाके देखो भी मत कि वो लोग ने पार्टी में क्या किया है, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एंड if you have written papers, I have tried and put comments on what all things should be changed, कहाँ पे changes कर सकते हो। अगर
तुम लोग ने खुद ने वो पेपर लिखा है, सो यू नो कि कहाँ पे तुम्हारा मिस्टेक हुआ है। सो इंश्योर कि जहाँ पे मिस्टेक हो रहा है या जो पॉइंट अपने को याद नहीं आ रहा है थ्योरी में, अच्छा मुझे बुलेट्स नहीं याद आ रहे, तो ट्राई एंड रिमेम्बर द बुलेट्स। फाउंडेशन में दैट इज अ गुड पार्ट बिकॉज यू हैव द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे ऐसे बुलेट पॉइंट वाले क्वेश्चन है। सो इंश्योर कि वो बुलेट जो है वो तुम लोग याद रखो। अंदर का मैटर कुछ भी तुम लोग अपने वर्ड्स में लिखोगे, नो इश्यूज। बट अगर वो बुलेट राइट है तो तुमको ऑटोमेटिकली तुम्हारा मार्क्स मिल जाएगा, विच इज वाई आई एम शेयरिंग द चार्ट बुक इवन इफ यू डोंट रेफर द चार्ट बुक, बिकॉज वो एंड मोमेंट पे मिल रहा है। अगर तुम अपना जो क्लास में अपने नोट्स लिखे वो भी पढ़ोगे, मोर देन सफिशिएंट है। यू डोंट हैव टू रेफर अ न्यू बुक इफ यू डोंट वांट टू रेफर इट, सो यू कैन जस्ट रेफर टू द क्लास नोट्स विच आर देयर। एंड यस, बी वेरी कॉन्फिडेंट, अच्छे से पेपर लिख के आओ। एंड योर पेरेंट्स हैव स्पेंट सो मच मनी, मेक देम प्राउड। एंड यस, इंटर में आ जाना, हम लोग हैप्पी होंगे तुमको पढ़ाने के लिए। एनी अदर क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो which is relevant to your studies? मैम, Yes, Darshan. जब मैं प्रोविजंस लिखता हूँ, क्या? केस स्टडी के क्वेश्चंस को जब आंसर करता हूँ, तो फिर हाँ। जब मैं प्रोविजन लिखने का टाइम आता है, तो उसमें मोस्टली प्रोविजंस जो भी लिखता हूँ तो फिर वो अपने ओन वर्ड्स में ही रहते हैं। अगर पूरा पेपर करेक्ट है लेकिन सभी में प्रोविजन ओन वर्ड्स में, तो पास करेंगे क्या? लॉ जो है ना वो तेरे को ऑनवर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा। तू मुझे बोलेगा ना तो मैं मेरा टेक्स्ट बुक भी पूरा तेरे को लिख के ऐसा का ऐसा नहीं दे सकती हूँ। बट मैंने जैसे कल बोला था तुम लोग को कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं क्वेश्चन में, वो मुझे लिखना ही है। तो अगर मैंने लिखा है कि फ्रॉड है, तो फ्रॉड में जो है इंटेंशन टू डिसीव और प्रॉमिस टू परफॉर्म समथिंग दैट आई डोंट इंटेंड टू परफॉर्म, वैसे वाले जो वर्ड्स है जो मेरा एसेंस है, तो वो मुझे लिखना ही है। जैसे कोर्शन लिखेंगे तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, तो वो वर्ड्स अगर नहीं है तो फिर कोर्शन खुद के वर्ड्स में कर। लेकिन अगर वो जो वर्ड्स वहां पे है वो नहीं लिखे हुए हैं, तो देन इन दैट केस मार्क्स कम मिलेगा तेरे को, बिकॉज लीगल लैंग्वेज तूने नहीं लिखा है। सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द लॉ, इवन इफ आई राइट द फाउंडेशन पेपर टुडे, मैं वो ही लिखूंगी, अपने ही वर्ड्स में लिखूंगी। बट जो की वर्ड्स मेरे होते हैं वो मेरा होना चाहिए कि दिस इज व्हाट, अगर मैंने पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन करना है कम्युनिकेशन के लिए, तो जब भी पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन किया या कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, तो दैट वर्ड्स इज समथिंग आई हैव टू राइट कि पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कम्स टू हिज नॉलेज, दैट आई हैव टू राइट। फिर आगे पीछे का जो थ्योरी मैं अपना एक्सप्लेन करूंगी, दैट ऑब्वियसली विल हैव टू बी इन ओन वर्ड्स ओनली, दैट यू कांट रिमेम्बर वर्ड टू वर्ड पूरा टेक्स्ट बुक, वो इम्पॉसिबल है टू डू दैट। एंड अगर तुम ऐसा करते भी हो तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू put so much of your space in remembering that part, because after a point you won't be able to remember it as it is. So concept तुम लोग को समझ में आना चाहिए। when question is asked case study में, देखो समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, what concept are we talking about, and then you write it in your own words, वैसा थ्योरी। एंड तेरे पेपर में मैंने देखा था कि फैक्ट्स जो है तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में करता है, उतना डिटेल में नहीं करेगा तो चलेगा, अनलेस लाइक अगर तेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है तो तू लिख सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर पेपर छूट रहा है ऐसे लग रहा है, तो फैक्ट्स जो है वो तू थोड़ा कम में लिख सकता है। मुझको तेरा स्पेसिफिक याद है कि फैक्ट्स जो है थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में लिखा था, उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चंस? Okay. नहीं। We will end the lecture here. Wish you all the very best. If there is any doubt, anything that ऐसे ही बात करने का मन हो गया कि मैम आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, कॉल कर, मैं तेरे को मस्त पढ़ाई करने का मन कराएगी। तो जस्ट कॉल। मेरा आई थिंक 8 जैन तक आई हैव अ हेक्टिक शेड्यूल, उसके बाद आई एम फ्री, बहुत टाइम है मेरे पास, तो उसके बाद अपन मस्त बैठ के गप्पा मार सकते हैं। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से लिखना पेपर, बी कॉन्फिडेंट। एंड
when you're preparing, I would just say keep telling your brain. Your brain is a very important tool in the body, correct? So you have to keep telling your brain that I'll be able to do this. Your unconscious mind जो होता है ना, उसको पता होना चाहिए कि अपन ये कर सकता है. You keep saying that and you will be able to do it. So just have that positive thing. नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं रह रहा है, ऐसा नेगेटिव माइंडसेट से मत जाओ. एंड अगर कोई फ्रेंड है जो ऐसा रोता है ना, कोई कोई फ्रेंड्स होता है, मेरा एक फ्रेंड होता था, वो हमेशा रोता था. उसको फुल 100 on 100 आता था. ही वॉज ऑल 3 लेवल्स पे रैंक होल्डर. बट एनी टाइम यू आस्क हिम, एक तो मेरे पीछे ही बैठता था, तो ही विल टेल मी कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो ये टाइम पक्का फेल है, ये छूट गया, वो छूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. तो ऐसा जो नेगेटिव बोलेंगे उनसे दूर रहने का. पेपर जो है किसी के साथ डिस्कस नहीं करने का. ना ही घर पे आके ऐसा बैठ के देखने का, अच्छा ये लिखा है, इसका इतना मार्क्स, इतना. पेपर चला गया है, अभी जो होना है वो होने वाला है. वो घर पे इतना स्ट्रेस लेके मतलब नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग ऑल ऑफ दैट. भले छुट्टी है, सो जाने का आके, रेस्ट करने का, फ्रेश होके नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करने का. सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, एंड बी पॉजिटिव. बट उसके साथ ऑब्वियसली पढ़ाई भी करना पड़ेगा, खाली पॉजिटिव रह के मतलब नहीं है. तो पढ़ाई करो, पॉजिटिव सोचो कि मुझे याद रहेगा ही. एंड इफ यू टेल योर सेल्फ कि याद रहेगा, तो वो तुमको याद रहने ही वाला है सब कुछ. सो यू विल रिमेम्बर दैट थिंग. एंड डोंट डिस्कस विद अदर्स तेरा कितना पढ़ाई हुआ, तेरा क्या हुआ है, तेरे को कितना मार्क्स मिला टेस्ट में. कुछ नहीं, अपने को अपना देखने का, और अपना जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखने का है. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़ो. इफ देर इज एनीथिंग एंड इफ आई डोंट टेक योर कॉल, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन द वेरी सेम डे. एंड यस, स्टडी वेल. आई एम होपिंग सब लोग पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए मेरे पास. ओके. बाय बाय. थैंक यू. बाय मिस, थैंक यू. बाय.